A very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your social science teacher. So, class, in our last class, we started our chapter number 4 of your civics book. The name of the chapter is Understanding Laws. We have gone through the introduction part of this chapter, and after that, we have seen that, that in India, like nobody can be discriminated on the basis of their caste, religion, or gender or any other basis. Nobody can be discriminated against. Can be discriminated. Rule. There is a rule of law. It means rules are same for everybody. Either it is the president of India or it is the common citizen of India. Rules are same for us. Same rules applies to all. Okay, after that we have seen it was not always like this. ठीक है, history में ancient time में at the time of when Britishers was there in India, their communities were like different. ठीक है, British colonists introduced this system of rule of law, and there are several disputed claims also. जैसे कि Britishers started their arbitrary rule. They started their arbitrary law, Sedition Act of 1870, and according to this act, if anybody is trying to protest or criticize the British government, they could be arrested without due trial. कि उनकी कोर्ट हियरिंग नहीं होगी, उनको without any evidences, without any पर्पस उनको अरेस्ट कर लिया जाता था. This was sedition act. Arbitrary मतलब होता है मनमानी करना. Okay, and many Indian nationalists Indian nationalists criticize this act, this law, Sedition Act of 1817, and they played a very prominent role in the development of the legal sphere in India. Okay, so now today we will talk about another example of arbitrariness, and especially Britishers के time पे, British Raj के time पे हम पढ़ेंगे. So the another example of arbitrariness of Britishers was the Rowlatt Act. So what is this Rowlatt Act? British government imprisoned people without trial. According to this act, the Rowlatt Act, which allowed the British government to imprison people without trial. मतलब ये जो British government थी, वो क्या कर रही थी, वो citizens को without trial, अगर अब आज के टाइम पे क्या होता है, अगर आप किसी को भी, अगर कोई अरेस्ट होता है तो उसे कोर्ट के पास जाना जरूरी होता है, और 24 आवर्स के अंदर अंदर, और कोर्ट की हियरिंग होनी जरूरी है. But under this Rowlatt Act, British government imprisoned people without trial. उसका कोई दोष है नहीं है, फिर भी उसको क्या है, 2-3 साल तक, इवन लाइफ टाइम तक उन्होंने जेल में रखा है विदाउट एनी गिल्ट. Mahatma Gandhi were vehement in their opposition to the Rowlatt Act. Now, Rowlatt Bill. Vehement means showing very strong anger. Vehement means क्या होता है, showing very strong anger. बहुत तेज गुस्सा आप शो करते हो ना किसी चीज के लिए, तो उसको हम बोलते हैं वेहिमेंट. ठीक है, सो महात्मा गांधी वर वेरी वेहिमेंट इन देयर ऑपोजिशन टू द रॉलेट बिल. रॉलेट बिल के अगेंस्ट में उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया था. But bit came on effect on 10th March 1919. But फिर भी क्या है, despite the large number of protests, the Rowlatt came into effect on 10th March 1919. बहुत सारे oppositions के बाद भी क्या हुआ, 10th March 1990 को Rowlatt Act जो हो चुका था, पास हो चुका था. In Punjab, 2 protesters, Dr. Satyapal and Dr. Saifuddin, were arrested. पंजाब में 2 प्रोटेस्टर्स थे. व्हाट रॉलेट एक्ट में भी क्या था, कोई भी प्रोटेस्ट करता है, क्रिटिसाइज करता है, गवर्नमेंट क्या कर लेती है, उनको इम्प्रिजन कर देती है विदाउट एनी ट्रायल. तो सेम पंजाब में क्या किया था, डॉक्टर सत्यापाल, जो 2 प्रोटेस्टर्स थे, डॉक्टर सत्यापाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन, उन दोनों को क्या कर लिया गया था, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया था. To protest these arrests, a public meeting was held on 13th of April 1919 at Jallianwala Bagh. You all are like very much aware about this incident.
ठीक है, कहीं ना कहीं ये टर्म सुना होगा आपने, जलियांवाला बाग इंसिडेंट। सो टू प्रोटेस्ट दीज अरेस्ट, कि डॉक्टर सत्यापाल, डॉक्टर सैफुद्दीन को क्यों अरेस्ट किया गया है, और इस अरेस्ट को प्रोटेस्ट करने के लिए एक पब्लिक मीटिंग हेल्ड हुई थी। कब हेल्ड हुई थी? 13 अप्रैल 1919। वेरी इंपॉर्टेंट डेट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 13 अप्रैल 1919 एट जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग पंजाब में, अमृतसर में एक पार्क था, ठीक है, वहां पे एक वेल था, ठीक है, उस पार्क का नाम है जलियांवाला बाग। तो 13 अप्रैल 1919 को एक मीटिंग हुई थी जलियांवाला बाग में, और ये मीटिंग क्या थी? डॉक्टर सत्यापाल, डॉक्टर सैफुद्दीन को अरेस्ट कर लिया गया था, ये दो प्रोटेस्टर्स थे, तो उनको प्रोटेस्ट करने के लिए, ठीक है, टू प्रोटेस्ट दीज अरेस्ट, ये मीटिंग हेल्ड की गई थी। सो नाउ इन दिस इंसिडेंट व्हाट हैपेंड, जनरल डायर entered the park with troops। जनरल डायर थे उस टाइम पे, ठीक है, मिलिट्री के अंडर में थे, मिलिट्री के हेड थे जनरल डायर। he entered into the park into the park with his troops के साथ, मतलब अपने सोल्जर्स के साथ, अपने मिलिट्री के साथ, क्या है वो जलियांवाला बाग में आ चुके थे। क्लोज द ओनली एग्जिस्ट एंड स्टार्टेड फायरिंग। जलियांवाला बाग का खाली एक ही एंट्री गेट था और एक ही एग्जिट गेट था, और कोई गेट नहीं था। तो व्हाट ही डिड, ही एंटर्ड into the park with the troops and he closed the only exit, और उन्होंने बंद करके क्या करने स्टार्ट कर दिया, he started firing। उन्होंने क्या है, फायरिंग को स्टार्ट कर दी थी। So after this several hundreds of people died in this gunfire and many more were wounded including women and children। बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी थी, बहुत वुमेन, बहुत चिल्ड्रन जो है इंजर्ड हो चुके थे। एंड नाउ जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, जस्ट लुक एट दिस पिक्चर। ये इंसिडेंट शो कर रहा है जलियांवाला बाग का, जो ट्रूप्स ने फायर की थी ऑन द पीपल ड्यूरिंग जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है। दे एंटर्ड इनटू द पार्क, क्लोज द गेट एंड स्टार्टेड फायरिंग। बहुत सारे लोग उसमें लोगों की डेथ हो चुकी थी। अब वहां पे बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, बहुत सारे लोग जो थे, there was a well there, they jump on that well, ठीक है, उस वेल पे, वो उस वेल के अंदर उन्होंने जंप कर दिया। सो इवन इफ यू गो देयर टुडे, then also you are able to see the blood of those those people there into the well, और वहाँ की जो वेल है, वहाँ की जो वॉल्स है, वहाँ पे ब्लड के आपको जो है निशान आज के टाइम तक अभी भी दिख जाएंगे। So class, now our next topic is Hindu Succession Amendment Act 2005. Okay, so now what is this Hindu Succession Amendment Act of 2005? According to this new law, sons, daughters and their mothers can get an equal share of family and the property. Okay, in your class 6th book also you read about Hindu Succession Act. Okay, so now with the adoption of the constitution 1950 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था, एंड दिस डॉक्यूमेंट सर्व्ड एज द फाउंडेशन ऑन व्हिच आवर रिप्रेजेंटेटिव began making laws for the country. Based on this constitution, our leaders, our government started making laws. Okay, and under this Hindu Succession Amendment Act भी आता है, and according to this, जैसे जैसे threats देखे, जैसे जैसे challenges face किए, वैसे वैसे laws आते गए. Okay, so according to this law, according to this act, sons, daughters and their mothers can get an equal share of family property. ठीक है, कि कोई भी family property है तो वो उसमें sons को, daughters को और mothers को जो है, अगर किसी के फादर की डेथ हो जाती है और उसके सन, डॉटर और मदर्स हैं, तो वो क्या है, उनको इक्वल शेयर मिलेगा। ठीक है, तो ये हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट है। एंड सिमिलरली न्यू लॉज हैव बीन इनैक्टेड टू कंट्रोल पोल्यूशन एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। देयर आर सो मेनी अदर लॉज आल्सो
जो इनेक्ट किए गए हैं, किसके लिए? पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। सो नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट। अब कोई भी नया लॉ बनता कैसे है? हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट? So, as you all know, the parliament has an important role in making laws. You all know what is a parliament. Parliament is a body comprises of Rajya Sabha, Lok Sabha, and the president. Rajya Sabha, state council of the states. Lok Sabha, house of the people. ठीक है, लोगों के जब citizens choose their own representative by the election process, they are the members of the Lok Sabha, and Rajya Sabha indirect elections होते हैं when the MLAs of the state choose their representatives for the states, ठीक है। they are known as उनके जो members हैं उन्हें राज्य सभा का member बोला जाता है, and the president of India. It means parliament. So as you all know, parliament has an important role in making laws. कोई भी law बनता है पहले राज्यसभा में, लॉ बनने से पहले अगर कोई प्रपोजल आया तो उसको हम बिल बोलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं बोलते हैं कि लॉ बन चुका है डायरेक्टली। कोई प्रपोजल, कोई डॉक्यूमेंट बनता है कि हम ये लॉ बनाना चाहते हैं, तो उसको लॉ बनाने से पहले वो बिल कहलाता है, ठीक है। तो ये जो प्रपोजिंग बिल है, पहले राज्यसभा में क्या है प्रपोज किया जाता है, फिर लोकसभा में किया जाता है, फिर उसके बाद जो है प्रेसिडेंट के पास जाता है। अगर जब प्रेसिडेंट उसमें साइन कर देते हैं, एक्सेंट दे देते हैं, उसके बाद वो बिल जो है एज अ लॉ आता है हमारे पास। ओके, सो पार्लियामेंट हैज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज. An important role is to be sensitive to the problems faced by the people. So, like as you all know, there are many ways through which this take place, and is often different groups in society that raise the need for a particular law. There are so many different types of problems or challenges faced by the people. Okay, जैसे कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, उनके थ्रू उन वो कुछ उनको हो सकता है कि आइसोलेटेड सा फील करते हो, वो उनको गवर्नमेंट जॉब्स में एंट्री नहीं मिलती होगी, तो इसके लिए क्या बना? लॉ बना, नया लॉ बना। उनको डिफरेंट पीपल डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्या करते हैं, फेस करते हैं। सो an important role is to be sensitive to the problems faced by the people. Now we will let us read the following story to understand how issues of domestic violence was brought to the attention to the parliament. ठीक है, first of all, what is this domestic violence? It means it refers to the injury or harm or threat of injury or harm caused by an adult male, usually the husband, against his wife. नॉर्मली जो डोमेस्टिक वायलेंस बोला जाता है, किसको बोला जाता है? इट मींस कोई भी इंजरी, कोई भी थ्रेट, या फिर फिजिकल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, ठीक है, मारना, पीटना, ठीक है, डाउरी डिमांड करना, ठीक है। ये क्या है? कोई किसी भी टाइप का जब हार्म कोई एडल्ट में, यूजुअली हस्बैंड को बोला जाता है, ठीक है, या फिर जो फादर इन लॉ होते हैं वो करते हैं, तो वो जब अगर कोई इंजरी, कोई हार्म, कोई थ्रेट या फिर कोई वायलेंट एक्ट करते हैं वाइफ के अगेंस्ट में, या फिर किसी पर्टिकुलर वुमेन के अगेंस्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक वायलेंस बोलते हैं। मारपीट करना, ठीक है, धमकाना, मेंटल टॉर्चर करना, ये सब डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर आता है, अंडर में आता है। ओके, सो इंजरी में बी कॉज्ड बाय फिजिकली बीटिंग अप द वुमेन और बाय इमोशनली अब्यूजिंग हर, ठीक है। हो सकता है फिजिकली उसको बीट करते हुए, ठीक है, फिजिकल उसको मारते हो, पीटते हो, और हो सकता है मेंटली या फिर इमोशनली उसको अब्यूज करते हो, उसके लिए गलत वर्ड्स यूज करते हो, उसको उसके डिजायर्स के अकॉर्डिंग घर से बाहर नहीं निकलने देते होंगे, काम नहीं करने देते होंगे, या फिर उसको अब्यूज करते हैं, उसे एज अ स्लेव ट्रीट करते हैं। तो दिस इज नोन एज डोमेस्टिक वायलेंस. Abuse of the woman can also include verbal, sexual and economical abuse. ठीक है, verbal हो सकता है, sexual हो सकता है कि आप कुछ अब्यूजिव वर्ड्स यूज कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए, या फिर आप उसको फिजिकली टॉर्चर कर रहे हो उसके विल के अगेंस्ट में, या इकोनॉमिकली कि आप उसको
इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं दे रहे हो, या फिर आप उसको लाइक आपके फैमिली एज अ फैमिली मेंबर आप उसको इंक्लूड नहीं करते हो, उसको पैसों के लिए टॉर्चर करते हो, डाउरी के लिए टॉर्चर करते हो, तो ये सब क्या है, अब्यूज ऑफ द वुमेन के अंडर आएगा. ओके, इट मे बी वर्बली, सेक्सुअली और इकोनॉमिक अब्यूज. The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 extends the understanding of the term domestic to include all women who live or have lived together in a shared household with the male member who is perpetrating the violence. ठीक है. अब जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2000, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ऑफ 2000, डोमेस्टिक टर्म का मतलब क्या है, एनी वुमेन, ठीक है, ऑल वुमेन, एनी वुमेन जो एक ही हाउस में लिव और हैव लिव्ड टुगेदर इन अ शेयर्ड हाउसहोल्ड, अपने हस्बैंड के साथ या किसी मेल मेंबर के साथ काफी टाइम तक एक ही घर में रही है या फिर रह रही है, और उसको वो सारे वायलेंस, फिजिकल, वर्बल या इकोनॉमिकल अब्यूज उसको वो उसने सहन किए हैं, वो सब क्या आएगा, डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर आएगा. ठीक है. सो नाउ जस्ट लुक एट दिस story which is mentioned in your book. It is related to the domestic violence. Just look at this. October 2006, डेट अच्छे से देखना, ठीक है. अक्टूबर 2006 का न्यूज़पेपर हेडलाइंस है, क्या है, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 पास्ड. 2005 में जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस जो है 2006 में अब पास हो चुका है. Sazia, did you read today's newspaper? Isn't it a great day for women? Now, this is a woman who is saying, who is talking to maybe her colleague or friend कि देखो आज का जो न्यूज़पेपर है उसकी तुमने हेडलाइन पढ़ी, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हैज बीन पास्ड. मतलब क्या ये बहुत अच्छा नहीं है वुमेन के लिए? Not just women, violence-free homes will benefit everyone. Kusum, it's taken such a long time to get this law passed. In fact, it began with establishing the need for a new law. अब देखो, now she is saying कि maybe her name is Kusum, तो she is saying Kusum, इससे हम सबको benefit मिलेगा, चाहे वो मेल्स हो फीमेल्स हो, सब बहुत ज्यादा benefit होंगे. और ये जो लॉ पास हुआ है, इस लॉ को पास करने में काफी टाइम लग चुका है. Kusum and Sazia work for a women's organization. They remember the journey of how the protection of women from domestic violence act got passed. So they both Kusum and Sazia working for a women organization. Maybe उन्होंने एक long journey face की है domestic violence से related. Now, just look at this. April 1991, a typical day at their office. साजिया और कुसुम की ही बात हो रही है यहाँ पे. अप्रैल 1991 की बात है ये. I need advice. My husband beats me up. I haven't told anyone so far. I feel so ashamed. I can't go on like this anymore, but I have nowhere to go. Now, एक वुमेन है जो क्या बोल रही है, लाइक मेरा जो हस्बैंड है मुझे बहुत मारता है और मैंने अभी तक किसी को ये बात नहीं बोली है, मुझे बहुत शर्म आती है, मेरे पास और कोई जगह नहीं है कि मैं कहीं पे जा सकूं. I am being ill-treated by my son and daughter-in-law. They verbally abuse me. I have no access to my bank accounts. They may even throw me out. Now, just look at this woman. अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हस्बैंड ही अपनी वाइफ को टॉर्चर करता है, वायलेंट करता है, या फिर कोई ससुर ही अपनी फादर इन लॉ ही टॉर्चर करते हैं. नहीं, ये सन और डॉटर इन लॉ अगर वो भी कर रहे हैं अपनी मदर के लिए, किसी भी वुमेन के लिए, तो वो भी क्या होगा, एक डोमेस्टिक वायलेंस ही कहलाएगा. So now this woman is saying, I am being ill-treated. मेरा बेटा और मेरी बहू बहुत बुरी तरीके से मेरे साथ ट्रीट करते हैं, मेरे को बहुत गंदे वर्ड्स, वर्बली बहुत ज्यादा अब्यूज करते हैं, गंदे वर्ड्स मेरे लिए यूज करते हैं. मेरे बैंक अकाउंट्स में आई हैव नो एक्सेस टू बैंक अकाउंट्स में मेरा एक्सेस नहीं है, सब उनके पास है. हो सकता है कि वो कुछ टाइम बाद मुझे घर से बाहर निकाल दे. I do not want to go to the police. I just want to stop the violence. अब ये वुमेन बोल रही है मुझे
पुलिस के पास नहीं जाना है, बस ये वायलेंस जो हो रहा है ये रुक जाए। आई जस्ट डोंट वांट टू बी थ्रोन आउट ऑफ द हाउस आई एम लिविंग इन। मैं नहीं चाहती कि मेरे को घर से कोई बाहर निकाल दे। Unfortunately, the existing law is a criminal one and does not offer this option. Now she is saying maybe she is a lawyer. बोल रही कि हम जितने भी existing laws हैं, हम 1991 की बात कर रहे हैं, ठीक है? जितने भी existing laws हैं, वहां वो सारे क्रिमिनल्स के लिए हैं, क्रिमिनल के लिए हैं। तो अगर कोई क्राइम होता है या कुछ होता है तो उसके लिए है, वायलेंस के लिए कोई भी लॉ नहीं है। So throughout the 90s the need for a new law was raised in different forums. ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए जहाँ पे बहुत ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस होता था। We have heard testimonies of several women. We have seen that women want protection against being beaten, the right to continue living in a shared household, and often temporary relief. We need a new civil law to address this issue. Now this is a public hearing, maybe एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वुमेन वायलेंस के अगेंस्ट में जो है उन्होंने क्या लिया, स्टेप लिया है। नाउ दे आर सेइंग देयर आर सो मेनी वुमेन हु वांट्स आवर हेल्प, हु वांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट बीइंग बिटन, जो अपने घर में रहना चाहते हैं, ठीक है, वायलेंस नहीं चाहते हैं। तो हमें एक न्यू सिविल लॉ की जरूरत है। So in 1919, lawyers collective, a group of lawyers, law students, and activists, after nationwide consultations, took the lead in drafting the Domestic Violence Prevention and Protection Bill. This draft bill was widely circulated. Now 1999 में lawyers, group of lawyers जो law activists थे, law students थे, बहुत nationwide consult करके क्या है, एक domestic violence प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन बिल को उन्होंने क्या किया, ड्राफ्ट किया। ड्राफ्ट किया मतलब रफली जब बनाते हैं ना कि क्या क्या होना चाहिए, उसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग करना। ड्राफ्ट किया और इस ड्राफ्ट को वाइडली बहुत जगह सर्कुलेट किया। So the definition of domestic violence should include physical, economic, sexual and verbal and emotional abuse. Now this is a woman, or you can say a lawyer or maybe a law student who is saying कि जो डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन है, इसमें फिजिकल, इकोनॉमिक, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल अब्यूज को भी क्या है, इंक्लूड करना चाहिए। The law should cover any woman living within a shared domestic space. They should be protected from being evicted from the shared household. ये जो लॉ है वुमेन का कि डोमेस्टिक स्पेस में आप क्या है, शेयर जो भी डोमेस्टिक प्लेस है, जिस भी हाउस में आप एक हाउस शेयर करके रह रहे हो, उसमें उसका भी उतना ही अधिकार है जितना कि आपका है, और वो उस घर में रह रही है तो उसको उस घर में प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। What should some monetary relief? Now they all are like discussing कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, हम ड्राफ्ट्स में क्या क्या मेंशन करें। तो they all are discussing this thing. Okay, so now we will continue this story later on. कल हम करते हैं कि देखते हैं कि क्या क्या उन्होंने डिस्कस किया और कैसे एक लॉ बना। We will discuss this story once again.